वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमाय श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। बात की जाए, आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 20वें श्लोक को हम पढ़ने जा रहे हैं। वी आर रीडिंग फ्रॉम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर 20। कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमानुषः। कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमानुषः। कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमानुषः। तो आप में से कोई एक काइंडली इस श्लोक को बोल सकते हैं, दोहरा सकते हैं। प्रभारंजन माता जी, अगर आप चैंट करें। हाँ प्रभु जी, मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बोला। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवा अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषा। थैंक यू माता जी। तो हम क्या करेंगे, ये जो संस्कृत के शब्द हैं उसको मैं बोलूंगा, और आप में से अगर कोई जो संस्कृत इक्विवेलेंट, जो इंग्लिश इक्विवेलेंट्स हैं, वो अगर बोले तो और भी अच्छा इंटरेक्टिव रहेगा। तो आप में से दीपा माता जी या फिर शमी माता जी या फिर सुनीता माता जी, अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स आप बोलना चाहें, यू कैन प्लीज टेल। मैं संस्कृत के वर्ड्स बोलूंगा, तो आप में से कौन बोलना चाहेगा? सो सुनीता माता जी, आप मैं संस्कृत के वर्ड्स जो संस्कृत के वर्ड्स जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैं वो जी बोलता हूँ। आप इंग्लिश जी वर्ड्स आप बोलें। इसकी इंग्लिश की मीनिंग्स मैं हाईलाइट कर रहा इंग्लिश हूँ। मीनिंग बोलना है। हाँ, मैं पहले संस्कृत के शब्द बोलता हूँ, आप फिर इंग्लिश के वर्ड्स बोलिए। जी। कृतवान, सॉरी प्रभु, कृतवान डन डन बाय व्हाट कर्माणि एक्ट्स सह along with रामेण Balarama, केशवः Sri Krishna, अतिमर्त्यानि superhuman, भगवान् the personality of Godhead, गूढ़ः masked as, कपट apparently, मानुषः। human being. So, translation and purport by His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये ट्रांसलेशन आप में कोई शमी माता जी आप पढ़ना चाहेंगे या फिर दीपा माता जी?
हाँ मैं बोलती हूँ. हाँ जी दीपा Lord माधुरी. Shri Krishna, the personality of God, had, along with Brahma, Balrama, played like a human being, and so must he performed many superhuman acts. थैंक यू माधुरी. तो मैं परपट पढ़ता हूँ. The doctrines of anthropomorphism and zoomorphism are never applicable to Sri Krishna or the personality of Godhead. The theory that a man becomes God by dint of penance and austerities is very much rampant nowadays, especially in India. Someone's तो आप प्लीज म्यूट कर लें. काइंडली आप म्यूट करें. please everybody request everybody to unmute. हाँ जी. तो the doctrines of anthropomorphism and zoomorphism are never applicable to Sri Krishna or the personality of Godhead. The theory that a man becomes God by penance and austerities is very much rampant nowadays, especially in India. Since Lord Rama, Lord Krishna and Chaitanya Mahaprabhu were detected by the sages and saints to be personality of Godhead as indicated in the revealed scriptures, many unscrupulous men have created their own incarnations. This process of concocting an incarnation of God has become an ordinary business, especially in Bengal. Any popular personality with traits of mystic powers will display some feat of jugglery and easily become an incarnation of Godhead by popular vote. Lord Sri Krishna was not that kind of incarnation. He was actually the personality of Godhead from the very beginning of his appearance. He appeared before his so-called mother as four-armed Vishnu. Then at the request of mother, he became a human-like child and at once left her for another devotee at Gokula, where he was accepted as a son of Maharaj Nanda and Yashoda Mata. Similarly, Sri Baladeva, the counterpart of Lord Sri Krishna, was also considered a human child born of another wife of Sri Vasudeva. In Bhagavad Gita, Lord says that his birth and deeds are transcendental, and that anyone who is fortunate as to know the transcendent nature of his birth and deeds will at once become liberated and eligible to return to the kingdom of God. So knowledge of the transcendental nature of the birth and deeds of Lord Sri Krishna Is sufficient. yes, is Sufficient for liberation. sufficient for liberation. In the Bhagavatam, the transcendental nature of the Lord is described in 9 cantos, and in the 10th canto, his specific pastimes are taken up. All this becomes known as one's reading of this literature progresses. It is important to note here, however, that Lord exhibited his divinity even from the lap of his mother, that his deeds are all superhuman. He lifted Govardhana hill at the age of 7, and that all these acts definitely prove him to be actually the supreme personality of Godhead. Yet, due to his mystic covering, he was always accepted as an ordinary human child by his so-called father and mother and other relatives. Whenever some Herculean task was performed by him, the father and mother took it otherwise, and they remained satisfied with an unflinching filial love for their son. As such, the sages of Naimisharanya describe
him as apparently resembling a human being, but actually he is the supreme almighty personality of Godhead. तो प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से इसका परपट उन्होंने दिया है। हमें ये सौभाग्य है कि हम इसको हम जान पा रहे हैं। ना बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप बहुत सारे लोगों की ये मान्यता है कि वो एक महापुरुष के पास जाते हैं, उनको कुछ अच्छा लगता है, या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी के पास जाते हैं, उनको कोई चीज अच्छा लगता है और वो उनको क्या करते हैं, उनको प्रोपगेट कर देते हैं, हाँ ये भगवान है, ये अवतार है। लेकिन ये चलन जो है ये आज की बात नहीं है, ये काफी समय से लोग इसको करते आ रहे हैं। साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग अम्मा भगवान को मानते हैं, और बहुत सारे सब अलग अलग टाइप के लोग, आपने भी देखा होगा कि थोड़ा सा कोई फेमस हो जाए तो घर पे उसकी फोटो रखेंगे और ये बताएंगे कि ये फलाना अवतार है, ये फलाना गॉड है। बट क्या ये फलाना गॉड है, इन्होंने कोई भगवान के जैसे कोई कार्य किया है? जैसे उदाहरण में प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर, 7 साल की उम्र में ठाकुर जी ने गिरिराज गिरि गोवर्धन जी को धारण किया था, जिसका 22 किलोमीटर उसकी परिक्रमा ही लगती है। हमें मिनिमम 4 घंटे लगते हैं चलते, अगर हम बिना रुके हम चलते जाएं 4 घंटे लगते हैं उसकी परिक्रमा करते हैं। तो ऐसा सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज, तो हम कुछ और सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज हम यहाँ पे विचार करेंगे, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज भगवान ने की है, भगवान कृष्ण ने की है जो सुपर ह्यूमन है। प्रभु जी पूतना को मारा था जब वो न्यू बॉर्न थे। जी, पूतना का वध ठाकुर जी ने किया था जब वो सिर्फ 1 महीने के थे जी। और क्या क्या किया था ठाकुर जी ने? जरासंध को मारा है। जरासंध को मारने के लिए उन्होंने वे माध्यम बने और उन्होंने भीम जी को इंडिकेशन दिया कि इसको 2 टुकड़े में करना है और एक इस तरफ फेंकना है। ऐसे प्रभु जी बकासुर को और बचपन में इतनी छोटी सी एज में उन्होंने इतने सारे राक्षसों को मारा। जी, उन्होंने प्रभु जी कालिया कई नाग सारे का दानवों पर वध किया, कालिया नाग का दहन किया। कालिया नाग का हाँ। वो उन्होंने किया। जी, तो उन्होंने 16,108 फॉर्म्स अपने लिए, 16,000 फॉर्म्स, जब 16,000 राजकुमारियां बोलती हैं कि आप हमें एक्सेप्ट करो, आप हमसे विवाह कीजिए, आप अगर हमसे विवाह नहीं करेंगे तो हम आत्महत्या करने के बजाय हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो भगवान कृष्ण 16,000 फॉर्म्स में एक्सपैंड होते हैं, तो ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। सामान्य एक योगी भी अगर वो अपने आप को बढ़ाएगा, वो सिर्फ 4 फॉर्म्स में बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमारी आंखें खोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी आजकल चलन है, स्पेशली अलग अलग समुदाय में आप देख रहे हैं कि कई अलग अलग समुदाय हैं, वो क्या करते हैं कि आप हमारे यहाँ पे आइए, हमारे जो गुरु हैं वो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, हमारी जो गुरु माता है वो साक्षात राधा रानी है। और आप अगर पूछें कि कौन से शास्त्र में उनका वर्णन है, श्रीमद् भागवत में उनका वर्णन है क्या, तो उनको उसके बारे में कुछ पता ही है नहीं। तो हमें
आम आदमी की तरह नहीं रहना है और हमें बेवकूफ कतई नहीं बनना है। तो लोग हमें अलग अलग कारणों की वजह से अलग अलग अवतारों के बारे में बताएंगे जिनका वास्तव में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो हमें होशियार रहना है। तो प्रभुपाद जी यहीं पे लिख रहे हैं, द डॉक्ट्रिन्स ऑफ एंथ्रोमॉर्फिज्म एंड ज़ूमॉर्फिज्म आर नेवर एप्लीकेबल टू श्री कृष्णा। कि कोई एक ऐसा योगी है, उसने 20 साल तपस्या की और वो भगवान बन गया। भगवान ऐसे चीप नहीं होते कि 20 साल आप तपस्या करो आप भगवान बन जाओगे। ये हमारा सिद्धांत नहीं है, गौड़ीय वैष्णव का ये सिद्धांत नहीं है। The theory that a man becomes God by dint of penance and austerities is very much rampant nowadays, especially in India. Since Lord Ram, Lord Krishna, and Lord Chaitanya Mahaprabhu were detected by the sages and saints to be personality of Godhead, as indicated in the revealed scriptures, many unscrupulous men have created their own incarnations. तो काफी सारे लोग इसको उन्होंने बिजनेस बना रखा है। वो अपने कुछ चेले चपाटे बनाएंगे, कुछ शिष्य बनाएंगे और उनके माध्यम से ये प्रचार करवाएंगे कि देखो उनके हाथ से जब विभूति निकलती है, जो राख निकलती है, उससे वो सारे अपने भक्तों को सोना देते हैं। ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं, वो स्वयं अवतार हैं। तो ये सोचकर जो गलियबल लोग हैं, जो कॉमन मास है, वो उनके पीछे पीछे जाते हैं और उन्हीं को, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जो कि प्रभुपाद जी के गुरु हैं, आचार्य हैं, वो बोलते हैं ये जो जगत है, ये दिस वर्ल्ड इज फॉर द चीटर्स एंड चीटेड। जो सब कुछ एकदम शॉर्टकट में लेना चाहते हैं, एकदम आराम से, आसानी से। मैं कोई तपस्या नहीं करूंगा, मैं कोई चैंटिंग नहीं करूंगा, मैं कोई एकादशी नहीं फॉलो करूंगा, मैं मांस भी खाऊंगा, मैं प्याज भी खाऊंगा, मैं लहसुन भी खाऊंगा, पिज्जा बर्गर फिल्म भी देखूंगा और साल में एक बार गुरु के पास जाऊंगा, उनकी चरण पकड़ूंगा और मेरे सारे पाप धुल गए। तो ऐसी मानसिकता जिनकी है, वो ऐसे चीप गॉड्स उनको चाहिए। और ऐसी मानसिकता वाले जो चीप गॉड्स हैं, उनको कई सारे ऐसे फॉलोअर्स मिल जाते हैं। क्योंकि जहां पे ये जो भेलपुरी है या चेना है ना, वहां पे कई सारे कस्टमर्स मिल जाते हैं। लेकिन जो हीरे की दुकान है, वहां पे वही आदमी जाएगा जो हीरे कमाने की क्षमता रखता है और हीरे खरीदने के लिए जो उसका प्राइस है वो चुकाने के लिए तैयार है। वही ये कर सकता है। तो प्रभुपाद जी हमारे आंखें यहाँ पे खोल रहे हैं और वो हमें बता रहे हैं, many unscrupulous men have created their own incarnations. This process of concocting an incarnation of God has become an ordinary business, especially in Bengal. तो आप सबको एक प्रसंग याद होगा, शायद प्रभु जी ने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं फिर भी एक बार बताऊं कि कोई एक व्यक्ति थे, उनका नाम गदाधर चैटर्जी था। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को हम गौड़ीय वैष्णव जो हैं, हम उनको भगवान मानते हैं, वो स्वयं कृष्ण है और उसका प्रमाण हम श्रीमद् भागवत अलग अलग स्कंदों से हम उसका प्रमाण देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये जो काली के उपासक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गदाधर चैटर्जी को उन्होंने भगवान बना दिया और उनका नाम फिर राम कृष्ण रख दिया। उनका नाम, उनका किसी शास्त्र में वर्णन है, उनकी क्या लीला की है, उन्होंने क्या करते थे।
वो मेडिटेशन करते थे। क्या मेडिटेशन करते थे? तो और फाइनली उनका जो मृत्यु हुआ, वो लोग बोलते हैं ही डाइड फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ कैंसर। तो भगवान ऐसे नहीं होते जिनको कोई डिजीज हो, उनका कोई बाईपास सर्जरी हो जाए। साउथ इंडिया में एक भगवान है, वो सबके पास भगवान भगवान बोलते थे। उनकी चरण स्पर्श करने के लिए, एक बार चरण स्पर्श करने के लिए 50,000 रुपए लेते हैं। और बहुत सालों तक ऐसा चलता रहा और उनका कुछ दिन बाद बाईपास सर्जरी हो गया। तो तब बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई, भगवान का बाईपास सर्जरी कैसे हो रहा है। तो इस तरीके से हमें इस कलयुग में ये चीटिंग टेंडेंसी है। कलयुग में इसको इसीलिए श्रीमद् भागवतम क्या कहता है, धर्म को जो कैतव धर्म है, जो चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजन है, जो धर्म के नाम पे ये जो चीटिंग चल रहा है, इन सबको श्रीमद् निकाल कर फेंक देता है। तो the process of concocting an incarnation of God has become उनका so कोई very visible, especially in ऑथेंटिक Bengal. डिस्क्रिप्शन नहीं है। Any popular personality with a few traits of mystic powers will display some feat of jugglery and easily become an incarnation of Godhead by popular vote. Lord Sri Krishna was not that type of incarnation. He was actually the personality from the very beginning of his appearance. तो आज से 2018 की बात है, मैं कर्नाटक से हूँ। मेरे पिताजी को he was diagnosed with pancreatic cancer, तो उनको पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया था। और हम HCG जो है हुबली में, वहां पर के गए थे और हम काफी सारे अलग जगह भी गए थे पैलिएटिव ट्रीटमेंट्स के लिए। तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट्स यानी जो प्रिवेंटिव केयर होता है वो देने के लिए। तो हम एक प्रिवेंटिव केयर जगह पे गए थे बेल्लारी में, क्योंकि पापा का क्रिएटिनिन लेवल, खून के अंदर क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ गया था। तो जब हम गए थे उस अस्पताल में, मेरी माताजी को किसी ने अप्रोच किया, मेरे सामने नहीं, मेरे एब्सेंस में, और अप्रोच बताया, आप अगर उस फलाना दरगाह में जाएंगे, वहां पे आपको नींबू मिलेगा, वो नींबू से आपके पति का जितना भी रोग है वो क्योर हो जाएगा। तो ये बात मुझे जब पता चला, मैंने इसका कड़ा विरोध किया। तो मेरी माताजी, उन्होंने मेरी एक नहीं मानी, क्योंकि पापा बीमार थे। तो उन्होंने उसको, मतलब मेरी माताजी वहां गई और वहां से वो नींबू लेकर आई। बट इवेंचुअली 15 जनवरी 2019 को मेरे पिताजी का उन्होंने ये देश त्याग दिया। तो ये एक प्रमाण है कि जो लोग जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, जो साधुओं का संग नहीं करते हैं, गुरु साधु शास्त्र, जो इन तीनों चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, वो इजीली उनको लोग ठग लेते हैं। तो इसीलिए हमें लोगों की बातों में नहीं आना है। हमें गुरु श्रील प्रभुपाद, साधु जो प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, जो उनको अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं, शास्त्र श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, इनमें जो ज्ञान है, उस ज्ञान की दृष्टि से हमें संपूर्ण ब्रह्मांड देखना है, हमारा ये जगत देखना है और हमें डिसीजंस लेना है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे वही बोल रहे हैं। मैं चाहूंगा, यहाँ पे मैंने ये जो हाईलाइट किया है ब्लैक कलर, प्रभारंजन माता जी आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे, मैंने हाईलाइट किया है ब्लैक कलर में। Any popular personality with a few traits of the mystic powers will display
some fear of the jugglery, and easily become an incarnation of Godhead by popular vote. Lord Sri Krishna was not that type of the incarnation. He was actually the personality of the Godhead from the very beginning of his appearance. He appeared before his so-called mother as four-armed Vishnu. Then, at the request of the mother, he became like a human child and at once left her for another devotee of Gokula, at Gokula, where he was accepted as the son of Nand Maharaja. तो यहाँ पे ये सारे ठाकुर जी के दिव्य लीलाएं हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमसे कि अगर हमको कोई बोले कि मैं भगवान हूं, मैं फलाने अवतार का अवतार हूं, तो हमें उनसे सिंपल एक ही चीज रिक्वेस्ट करना है। हमें उनको बोलना है, आप प्लीज आप अपना विश्व रूप बता दीजिए हमें, ताकि हम आपको भगवान मान ले। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। जो भी अपने आप को भगवान घोषित करता है, अपने आप को कोई अवतार बताता है, उनसे हमें एक सामान्य रिक्वेस्ट करना है कि आप अपना विश्व रूप बता दीजिए। So similarly, Sri Baladeva, the counterpart of Lord Shri Krishna, was also considered as a human child born of another wife of Sri Vasudeva. इसी श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी एक बहुत ही स्पेशल प्रेयर द्वारा भगवान कृष्ण को एड्रेस करती हैं और बोलती हैं कि मैं जब ये सारी लीलाएं देखती हूं, मैं अचंभे में पड़ जाती हूं कि आप स्वयं भगवान हैं, लेकिन आप एकदम मनुष्य की तरह, आप एक सामान्य मनुष्य की तरह आप एक्ट कर रहे हैं। जैसे आप सबको आपने कार्तिक का महीना, आपने पूरे कार्तिक का महीना घी का दिया दिया, उसमें वर्णन आता है कि जो भगवान जिनसे डर पर्सोनिफाइड डरता है, वो मैया के हाथ में छड़ी देखकर डर जाते हैं। तो दिस इज, ये देख के कुंती महारानी बोल रही हैं, मैं देख के हैरान हूं कि आप ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हैं। तो इसी आगे वर्णन भी आता है, हमारे भगवत गीता में भी कहा गया है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो जो भगवान के दिव्य लीलाओं का मर्म समझता है, इन गूढ़ रहस्यों को समझता है, कि कभी भगवान अपने प्रिय भक्त के सारथी बन गए, कभी भगवान अपने भक्तों के लिए वो मैसेंजर, दूत का कार्य कर रहे हैं, कभी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए रात में एक प्रहरी की तरह हाथ में तलवार लेकर घूम रहे हैं। तो ये भगवान की विशेष प्रेम है, विशेष अनुकंपा है उनके प्रिय शुद्ध भक्तों पर। इस अवस्था को हम आप सब प्राप्त कर सकते हैं। सुनीता माता जी, प्रभा रंजन माता जी, सोनम माता जी, कविता माता जी, सब लोग, we all can attain that stage, we all can come to the stage of we all can come to the stage of पांडवास। भगवान अपने पार्थ के लिए वो सारथी बने। जब द्रौपदी जे करुणा कर द्रौपदी पुकारी, तो पट लिपट गए वनवारी। तो उन्होंने एक असीमित सारी उन्होंने प्रोवाइड किया। सो हम भी ये सारी लीलाएं भगवान क्यों कर रहे हैं? भगवान को ये सारी लीलाएं इस भारत पे, इस धरा पे आके बताने की क्या जरूरत है? मैं ये सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, सुधा गोयल जी, सुनीता कौल जी, अनीता जी, सविता जी, अंजलि जी, जानकी जी, मेरा ये प्रश्न है आप सबसे, ऐसी सब लीलाओं को भगवान को करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है भगवान को ये सब लीला करने की?
प्रभु जी, ये वेद पुराणों की धरती है। यहाँ पर गंगा मैया बहती है। यहाँ पर ऋषि मुनियों का वास रहा है, और भगवान ने स्वयं अवतार इसीलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर इतने जो उनको राक्षसों को संहार करने के लिए और ऋषि मुनियों को उनसे मुक्त करने के लिए, ताकि वो तपस्या और भगवान की भक्ति कर सके। यही पर ही साधना है, भक्ति है यहाँ पर। तो वेरी नाइस माता जी, बट मैं ये सवाल को और एक बार दोहराऊंगा। आप में से कोई यू कैन काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन। भगवान को क्या जरूरत है? वो अपने गोलोक धाम में, वो पृथ्वी पे क्यों आए? हम सबके सामने ये सारे वृंदावन की लीलाएं क्यों करें? वो पांडवों की कैसे रक्षा कर रहे हैं, वो क्यों करें? क्या जरूरत है भगवान को ये सब करने की? श्रीमद् भागवतम क्यों दे रहे हैं वो? भगवत गीता क्यों दे रहे हैं वो? ताकि हम भी डिवोशनल सर्विस में आके ट्रांसेंडेंटल अपना ग्रोथ कर सकें और के मतलब परम धाम या प्रभुपाद जन्म उनके पैरों में हमें अपनी जगह मिल सके। वो ये बताना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल, वो एक एग्जाम्पल मतलब दिखा रहे हैं कि हम भी अपनी तीनों जो मोड्स एंड नेचर हैं उनको हम धीरे धीरे उससे आगे बढ़ते बढ़ते हम भी ट्रांसेंडेंटल स्टेज में आ सकते हैं। तो वो इंस्पायर करते हैं, उनकी जो लीलाएं हैं वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है और हम उस मार्ग में चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अनीता जी, इट्स एन प्रभु जी, एक्सीलेंट क्योंकि आंसर। वो हमसे, प्रभु जी, क्योंकि वो हमसे अनकंडीशनल लव करते हैं और हमें अपना और उनका संबंध बताना चाहते हैं कि तुम और हम कौन है। इस मेटीरियल वर्ल्ड में तुम खो गए हो। यस, हाँ, और यही इससे हम लोग है ना self-realization हो सके। लॉस से लगते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि लॉस्ट फीलिंग करते हैं, तो उन्हीं का ध्यान आता है, प्रभु का, तो फिर एक शेल्टर मिलता है। तो ये बहुत बड़ी शांति मिलती है, ये बहुत जरूरी है आत्म सबको। साक्षात्कार हो जाए जिससे जिससे हम अपना और उनका रिलेशन अच्छी तरह जान सकें और हम Yes. वास्तव में कौन हैं उसको पहचान सकें। यस, तो ये दिस इज द मीनिंग, दिस इज द, ये गुड रस ये है। ये आपने ये जो एग्जांपल्स दिए हैं वो हमें इंस्पायर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं भगवान का मंशा, उन्होंने ये धरती क्यों बनाई है, भगवान की मंशा क्या है, भगवान क्या चाहते हैं, वो लीलाएं ऐसे क्यों दर्शाते हैं। मान लीजिए नई टूथपेस्ट की कोई कंपनी खोली गई है, किसी को पता ही नहीं कि टूथपेस्ट की नया एक ब्रांड आया है। अगर जब तक वो ब्रांड का ओनर उसको एडवर्टाइज नहीं करेगा, हम और आप जाकर उसको खरीदेंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं करेंगे। भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता है और वो हमारे मानसिकता को ठीक अच्छी तरह समझते हैं। तो इसीलिए वो अपनी वृंदावन लीलाओं को हम सबके पास वो बताने, वो रचते हैं इस धरा पे, ताकि हम सब प्रोत्साहित हो। वी ऑल गेट इंस्पायर्ड एंड वी ऑल want to go back to Godhead, because भगवान और हम भगवान के अभिन्न अंश हैं। We are all part and parcel of the Lord. एंड जब हम भी देखेंगे कि मैं भी यशोदा मैया जैसी बन सकती हूँ, मैं भी नंद बाबा जैसा बन सकता हूँ, तो वी कैन डू इट। एंड जैसे ध्रुव महाराज द्वारा एक 7 साल का बच्चा 6 महीने उसने तपस्या की और उसने साक्षात भगवान के दर्शन किए। सो इट इज पॉसिबल। इसीलिए मानव शरीर दिया गया है कि हम इस मानव शरीर के अंदर ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल। और ये पॉसिबल कब है? जब हम गुरु, साधु और शास्त्र का एकदम सही उपयोग, एकदम सही मार्गदर्शन लेते हुए हम आगे बढ़े। तो हम आगे बढ़ते हैं इस चर्चा में। Sri Baladeva, the counterpart of Lord Sri Krishna, was also considered as a human child born of another wife of Sri Vasudeva. In Bhagavad Gita, Lord says that his birth and deeds are all transcendental. Janma karma chame divyam. And that anyone who is so fortunate as to know the transcendental nature of his birth and deeds will at once become liberated and eligible to return to kingdom of God. So ये kingdom of God जो शब्द है, ये हमारे धर्म,
हमारे सनातन धर्म में भी है, हमारे भागवत श्रीमद् भागवतम में हम किंगडम ऑफ गॉड का नाम भी जानते हैं, गोलोक वृंदावन धाम, और अन्य अन्य जो रिलीजन्स हैं उनमें जस्ट किंगडम ऑफ गॉड बोला जाता है या फिर किसी और नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन अन्य धर्मों में इतनी सारी डिटेल्स नहीं है, हमारे श्रीमद् भागवतम में इसका संपूर्ण डिटेल वर्जन है। So knowledge of the transcendental nature of the birth and deeds of Lord Shri Krishna is sufficient for liberation. कोई अगर सिर्फ मुक्ति चाहता है तो अगर भगवान की लीलाओं के गूढ़ रहस्य से वो समझ जाएगा तो वो लिबरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए, मुक्ति अलग बात है, कृष्ण प्रेम अलग बात है। अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र एकदम शुद्ध अवस्था में आपको चैंट करना है। वसुदेव लेवल पे, वसुदेव प्लेटफॉर्म पे आकर आपको चैंट करना है, बिना किसी अपराध के, बिना कोई नाम अपराध के, बिना नामाभास के। आपको शुद्ध नाम में रुचि के साथ आप जब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे तब आप कृष्ण प्रेम पाएंगे। वरना मुक्ति, अगर आप भगवान की लीलाओं का गूढ़ रहस्य जान जाएं तो उससे मुक्ति हो जाती है। इन हमारे ब्रजमंडल में एक कहावत है कि जो मुक्ति है वो भगवान से आके पूछती है मुक्ति कि मैं सबकी मुक्ति करती हूं लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो ठाकुर जी बताते हैं, अगर आप शुद्ध भक्त के व्रज रज का, जब शुद्ध भक्त चलते हैं उन व्रज की रज यानी जो धूल है, तो वो धूल आप जब माथे पे लोगे तब आप मुक्ति का मुक्ति होएगा। जो मुक्ति पर्सोनिफाइड है उसका लिबरेशन होगा। So knowledge of the in the Bhagavatam, the transcendental nature of the Lord is described in 9 cantos, and in the 10th canto his specific pastimes are taken up. तो बार बार प्रभुपाद जी बोलते हैं इस पर्टिकुलर विषय के बारे में कि 9 स्कंदों में, 9 कैंटोस में भगवान कौन है, उनकी पोजीशन के बारे में, उनकी ऑपुलेंस के बारे में, उनके लीलाओं के बारे में बताते हैं, एंड बाद में 10वें स्कंद में आते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें नित्यम भागवत सेवा करनी है, जैसे आप नित्य भागवत की सेवा कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी गुड। भागवत सप्ताह का चलन प्रभुपाद जी एक्सेप्ट नहीं करते, ना कोई और शुद्ध भक्त कभी करेगा, ना हम परीक्षित महाराज जैसे हैं, ना हम सुखदेव गोस्वामी जैसे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी नो आवर ट्रू पोजीशन एंड वी अंडरस्टैंड एंड फॉलो द साधना प्रोसेस। तो साधना भक्ति में हमें ये करना है कि we have to follow the instructions of the Guru. And in the 10th canto, his specific pastimes are taken up. All this becomes known as once reading of this literature progresses. It is important to note here, however, that the Lord exhibited his divinity even from the lap of his mother, that his deeds are all superhuman. He lifted Govardhan Hill at the age of 7. तो पूतना जी के बारे में आप सबको पता है, पूतना जी अपने पूर्व जन्म में कौन थी? याद नहीं है। तो ऐसा है एक पुराण में मेंशन आता है, जब बलि महाराज के पास वामन देव गए थे तो वामन देव की जो पुत्री थी, वामन देव जी की जो पुत्री थी, बलि महाराज जी की जो पुत्री थी, उन्होंने वामन देव को देखा। वामन देव यानी वेरी छोटे साइज की। तो उन्होंने उनको देखा, बहुत ही स्मॉल बच्चे की तरह, एंड वेरी क्यूट
whenever you see a very cute child, आप उनको प्यार करते हैं. So similarly, बलि महाराज जी की जो पुत्री थी, उन्होंने देखा कि एक सूर्य के का करोड़ों करोड़ों सूर्य की तरह तेजोमान एक व्यक्तित्व यज्ञशाला में आ रहे हैं, और वो इतने क्यूट हैं, इतने छोटे से नन्हे हैं, और तभी उनको देखकर उनके मन में विचार आया, बलि महाराज के मन में विचार आया कि मैं इस ब्राह्मण बालक को अपना स्तनपान कराऊं. तो वास्तव में माताएं बच्चों का या नर्स बच्चों को स्तनपान कराती हैं. देन जब वामन देव जी ने 3 पग धरती मांगी और बलि महाराज जी ने जब दे दिया, और वामन देव ने अपना शरीर बढ़ा करके अपने वास्तविक स्वरूप में आके संपूर्ण ब्रह्मांड उसको उन्होंने नाप लिया, और बलि महाराज के ऊपर तीसरा पग उन्होंने धरा, तो तब क्योंकि वो अपने पिताजी से जुदा हो चुकी थी, जो बलि महाराज की पुत्री, तो उन्होंने और एक विचार उनके मन में आया कि मैं इस बच्चे को विष पिलाऊं. तो ये जो डिजायर था, ये जो उनकी इच्छा थी, उन्होंने इसको द्वापर युग में संपूर्ण किया. उन्होंने पूतना जी ने स्तनपान भी कराया और विषपान भी कराया, और जैसे ही पूतना जी अपना ये देह त्याग करती हैं, इमीडिएटली एक वैकुंठ से रथ आता है, पुष्पक विमान की तरह विमान आता है, और उसमें वो आरूढ़ होकर वैकुंठ धाम, ठाकुर जी के धाम जाती हैं. सो ये ऐसे इसका वर्णन आता है. और शी गॉट द पोजीशन ऑफ वन ऑफ द मेड्स ऑफ मदर यशोदा. मदर यशोदा के लेवल का एक पोजीशन उनको मिला. तो इस टाइप से ठाकुर जी की अद्वितीय सुपर ह्यूमन लीलाज हैं. उनको वामन देव जी का और एक नाम है उरुक्रमा. उरुक्रमा मतलब कोई उनकी तरह कार्य कर ही नहीं सकता. So his divinity, he lifted Govardhan Hill at the age of 7, and that all these acts definitely prove him actually the supreme personality of Godhead due to his mystic covering. He was always accepted as an ordinary human child by his so-called father and mother and relatives. Whenever some Herculean task was performed by him, the father and mother took it otherwise. So, जब भी ठाकुर जी भगवान कोई भी विशेष लीला करते थे, तो उनके जो जितने भी सीनियर्स हैं, दे यूज्ड टू थिंक कि ये हमारा ही नन्हा कृष्ण है, वो कोई बड़ा भगवान नहीं है. They used to always think he is our child. Why प्रभु जी? क्योंकि 2 प्रकार की शक्तियां हैं, योग माया के महामाया कारण और योग माया. हम सब जो बद्ध जीव हैं, हम महामाया के अंडर आते हैं. जैसे बच्चों को या तो मां संभाल सकती है या दाई मां संभाल सकती है. जो छोटे बच्चे होते हैं, एक तो नर्स संभालती है या फिर ओरिजिनल जो माँ है वो संभालती है. तो हमारी ओरिजिनल माँ योग माया है. हम ओरिजिनली योग माया के अंडर में है. क्योंकि हमने ठाकुर जी के सेवा से हमने विरोध कर दिया है, तो हम महामाया के अंडर आ जाते हैं, जो कि एक नर्स की तरह है. और योग माया क्या करती है, वो भक्तों को ठाकुर जी की लीला में वो परम स्वाद आने के लिए वो उनकी ज्ञान को कवर कर लेती है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ योग माया. तो योग माया जी कवरिंग पोटेंसी जो है वही तो होगी ना. बिल्कुल बिल्कुल, ये कवरिंग पोटेंसी है, बट दिस इज ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म. तो ये आवरणात्मिका शक्ति स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है.
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ये शक्ति है, लेकिन ये शक्ति किस लिए है? क्योंकि भगवान और भक्त एक अलग अमोघ आनंद का स्वाद ले सके, उन अपने रिश्ते में एक अलग आनंद का स्वाद ले सके, इसलिए करती हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वृंदावन में भगवान कृष्ण, उन्होंने विष्णु का रूप धारण किया, नारायण का रूप धारण किया। तो सारी गोपियों ने क्या किया? वो इमीडिएटली नतमस्तक हो गई, उन्होंने प्रणाम कर दिया। तो वो ऐश्वर्य भाव में, गोपी जो है वो माधुर्य भाव में ठाकुर जी से वो अपना भाव प्रकट करती हैं। जब ऐश्वर्य भाव आ जाएगा, उन्होंने क्या किया? प्रणाम कर दिया। ठीक इसी तरह अगर नंद बाबा को पता चल जाए कि ये मेरे नारायण है, ये मेरे भगवान है, ये मेरे विष्णु है, ये मेरे कृष्ण है, तो वो अपने बेटा नहीं मानेंगे, वो सीधा प्रणाम करेंगे। और भगवान को जो वो फैमिलियल, जो माता पिता का जो प्रेम मिल रहा है, वो प्रेम मिलना रुक जाएगा। तो योग माया ये करना नहीं चाहती, तो इस वजह से ये वो करती हैं। So, and they remained satisfied with the unflinching filial love for their son. As such, the sages of Naimisharanya describe him as apparently resembling a human being, but actually he is the supreme almighty personality of Godhead. तो ये हमारा ये 20वां श्लोक था। हम एक काम करेंगे, इसको और एक बार हम इस श्लोक को बोलेंगे। तो आप में से कोई एक श्लोक बोलना चाहेगा? साक्षी जी, अंजलि जी, किरण जी, बिंदु माता जी, if possible you can। प्रभु जी सबसे बुलवा दीजिए, मास बुलवा दीजिए सबके, सब अच्छा, बोलेंगे। तो हम सब इकट्ठा बोलेंगे। let us all chant together। थोड़ा सब अगर बोलेंगे तो थोड़ी देर के लिए डिस्टरबेंस होगा, बट हम इसको थोड़ा सा सह लेंगे। तो हम सब एक साथ, मैं पहली बार एक लाइन बोल देता हूं, फिर आप लाइन बोलिएगा, मैं फिर दूसरी लाइन पे जाऊंगा। कृतवान किल कर्माणि, कृतवान किल कर्माणि, सह रामेण केशवः, सह रामेण केशवः, अतिमर्त्यानि भगवान्, अतिमर्त्यानि भगवान्, गूढः कपटमानुषः, गूढः कपटमानुषः। तो आप में से कोई इस पूरे श्लोक एक बार बोल देंगे? कोई एक, एनी वन ऑफ यू? कृतवानि किल कर्माणि सह रामेण केशवः, अतिमर्त्यानि भगवान् गूढकपटमानुषः। So thank you very much. So where is that? We will end. So with this we will stop now. हम इसको अभी विराम देंगे। तो हमें इस श्लोक से क्या सीखते हैं, हमें क्या सीखने को मिल रहा है? व्हाट इज द जिस्ट? हमने ये पूरा क्लास का जिस्ट क्या है? कोई समराइज करना चाहेगा? व्हाट इज द समरी ऑफ दिस एंटायर क्लास? Yes, Prabhuji, I will tell. हाँ जी, प्लीज। This entire shloka was, you should not go to any fake masters, who are trying to become God, and go to bona fide spiritual master who comes in a system and with the Vedic literature. Yes, perfect. And कोई और पॉइंट आप बोलना चाहेंगे? सुनीता जी, वंदना जी, किरण जी, जानकी जी। तो हम इस श्लोक में ये भी समझते हैं कि जो भगवान की लीलाओं का जान जाता है वो मुक्ति पा सकता है। अगर जो भगवान की लीलाओं का जो गूढ़ रहस्य है अगर कोई समझ जाता है तो वो मुक्ति पा सकता है। और भगवान ये लीलाएं इसीलिए करते हैं ताकि हम में वो उत्साह आए, हम भी इंस्पायर हो और हम भी एक शुद्ध भक्त बने। और भगवान हमें शुद्ध भक्त क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि हम यहाँ पे इस दुनिया में
इस धरा पे सफर हो, इस धरा पे हम कष्ट भोगें, या बुढ़ापे के द्वारा, रोगों के द्वारा, सो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, ये सारी सफरिंग्स हैं। भगवान नहीं चाहते कि हम ये सफरिंग्स को भोगें और दुख दर्द सहें, भगवान नहीं चाहते। और इसीलिए वो अपनी वृंदावन लीला हम सबके सामने प्रकट करते हैं, ताकि हम सब वापस भगवान के धाम जाएं, उनके साथ आनंद में झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए अपना जीवन बिताएं। तो यही ठाकुर जी की इच्छा है, और यही वो भगवत गीता के द्वारा वो संदेश देते हैं कि मत कर्म कृन, मेरा कर्म करो, मत परमो, मुझे सुप्रीम मानो। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो मुझे प्रणाम करके जाओ, कोई भी नया कार्य कर रहे हो मुझे याद करके करो। तो ये जब आप किसी को सुप्रीम मानते हो, अपने आप सब कुछ मानते हो, तो आप वो ये सब करते हो। सो दिस इज अ वेरी नाइस थिंग। हमें ये सारा सीख हम उनसे इस श्लोक से मिलता है। और अगर कोई और पॉइंट छूट गया होगा, सुनीता जी, सुनीता कौल जी, वंदना जी, अंजलि जी, सविता जी, नहीं प्रभु जी, कोई और प्रभु जी पॉइंट बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। थैंक यू माता जी। तो हम प्रोसीड करते हैं फर्दर, एंड चैंटिंग हम करेंगे। सो विद दिस विल स्टॉप आवर क्लास ओवर हियर। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, सब आप अपना माला